वहाँ सामने से एक हाथ उठ रहा है। हाँ सॉरी, वेरी सॉरी। वो सत्यपाल जी, then Anisha and then Malvi Kapal. फिर उसके बाद आई टेक माय टर्न। देखिए, मैं सर्वर साहब पीपल्स स्टडी की तरफ से, साउथ एशियन फर्टिलिटी की तरफ से 5-6 रिलीफ का मेजर डिजास्टर टैकल कर चुका हूँ। अपने तजर्बे के तौर पर मैं कहता हूँ कि हम एरियाज बांटने, जो ग्रुप हम जिस एरिया में काम करना चाहता है उनको दे दें। ज़रूरी नहीं कि हम क्लियर हाउस के तरह काम करें कि ये गांव, ये ज़िला, ये एरिया इस संस्था के सपोर्ट है तो डुप्लीकेसी नहीं होगी। नहीं तो यहाँ कई लोगों ने कहा कि एक जगह पर डंप हो रहा है, दूसरी जगह कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 रिलीफ कैंप ऑर्गेनाइज करने के बाद, 2 मेजर रिलीफ कैंप करने के बाद ये शिकायतें सुनी हैं कि एक ग्रुप गया, रिलीफ दे आया और उस जगह सब घरों को दे आया। दूसरा ग्रुप वहाँ पहुँचा, वो कहते हैं कुछ मिला ही नहीं। तीसरा ग्रुप कहता है फिर मिला नहीं। वो लोग जो लालची होते हैं, वो बेसिक नीड पूरी होने के बाद वो सामान बेचना शुरू कर देते हैं और जहाँ अपने अच्छे घरों को देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने देखा अपनी आंखों से। इसलिए एक रिलीफ कार्ड हर फैमिली को, जो ग्रुप जाए, जो अपने एरिया में काम करे, वो एक रिलीफ कार्ड बना कर दे। उस पर कंपल्सरी हो कि ये इसको दी गई है। हम इस वक्त 14 झुग्गी झोंपड़ियों में दिल्ली में काम कर रहे हैं और उसका एक 2 झुग्गी झोंपड़ी एक ग्रुप को दी हुई है। उससे कोऑर्डिनेशन होती है। कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आज लीव देंगे, कल को वो बिजी रख लेगा और आगे कहेंगे मुझे मिला नहीं। तो ये एक लीव कार्ड और एरिया बांटना ये जो बहुत जरूरी काम है। नहीं तो आप डुप्लीकेसी करते रहेंगे, डंप करते रहेंगे एक जगह और किसी जगह पहुंचेगा नहीं। तो ये मेरी 2 सजेशन है। Good evening, everyone. I'm Anisha, and I work with South Asia Women's Fund. I think just very briefly, 3 quick points. I'm guessing there would be concrete steps forward from this meeting, right? So I just want to reiterate the point that was made around documentation of best practices. I think that's very, very critical, and if we can have that. And at the same time, I think this group acting as an information hub. For example, we are getting a lot of news from our partners. We support a lot of women's rights groups and individuals in Nepal, and we're constantly getting news from them from various districts. I think if we send that information to you, I think there'll be a larger outreach of that kind of information rather than just our constituency, right? Secondly, just a brief information to share with every one of you that we're supporting women's rights groups, and we've left open our call for applications, that we will be focusing more on infrastructure support that the groups will need. I think we're also coming from the point of view that we are looking for long-term sustainability now, because clearly relief is not that's not we have experience in, and we have limited funds. So we're choosing to focus on sustainable long-term support. And the third thing is just a minor concern. I came in late, so maybe it's a clarification also I'm kind of seeking, because a couple of times it's been mentioned, we've named 2 or 3 women's rights groups like Jagori or Sangat, saying that they should be looking at women's Mahila Mudda, and I just want to say that it shouldn't be that Mahila Mudda to Mahila Sanstha do. I think that is something which all of us should be concerned, because this is something we are all going into, so it shouldn't be just the burden of women's groups. As feminist organizations, our concern is discrimination of every kind. So neither do we want to be just signatories, nor do we want to be just sidelined to Mahila Mudda. I think that's all I want to say. Thank you so much, Rakhi. Anisha, just a clarification that it wasn't ki Mahila Mudda to Mahila Sangathan. It was more that since you guys already have that network, to ensure that it's activated. नहीं हो रहा, दबा रही नहीं हो रहा। मेरी आवाज़ बुलंद है, सुनाई देगा। नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ हम
पोस्टेरिटी के लिए रखना चाह रहे हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू दैट इज ऑल कि जिसके जो नेटवर्क्स हैं वो उसको एक्टिवेट करे और वहां तक पहुंचाए। लेकिन एक सफाई विद ड्यू ह्यूमिलिटी देना चाहता हूँ, इन संस्थाओं से आपका क्या डिस्कम्फर्ट है उसका ये अभी मौका नहीं है बात करने का। ये ऐसा नहीं है, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, नहीं आपने कहा ना कि सिर्फ उनको ठेका ना दिया जाए, मोनोपोलाइज। दोबारा कह दीजिए आप। हाँ सॉरी, हाँ इसी मीटिंग के बारे में फोन था, नहीं मैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं मीटिंग के मजबूरी थी। थोड़ी आवाज में बोल देती हूँ सर। मेरा बस मुद्दा यही था क्योंकि ये मेरा जितना भी थोड़ा लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसमें से आ रहा है। ज़्यादातर क्या होता है जब हम, और ये हमने श्रीलंका में भी सुनामी के टाइम पे देखा था कि जब महिला मुद्दों की बात आती है और स्पेशली रिलीफ एफर्ट्स एंड ऑल, तो ये पूरा जो होता है ना कि महिलाएं संस्था ही इसके ऊपर देखेंगी, बाकी हम लोग, ये हमारा मुद्दा नहीं है। I just wanted to reiterate कि ये जो महिलाओं का जो मुद्दा है ये सबका मुद्दा है, and of course as women's rights groups we will be seeing if there's any kind of discrimination or if anyone's being left out. लेकिन इन संस्थाओं को लेके आप का कुछ नहीं, मैं बस मैं कह रही थी आप बार-बार महिला संस्थाओं को सिंगल आउट मत कीजिए कि ये दोनों देखें, ये संगत हो गया, gender concerns should be for the looking at gender concerns we should call Jagori and others. So she is saying that don't do that, and to me also I also heard the same thing, and it seemed that way. It may not have been we are of course going to try like that. One sec. I think what Vijay Pratap ji did say was that he felt that the signatories that were there was no specific voice from the women's groups. So if they wanted to ask either Jagori or Sangat or whichever women's group, so that it was a wider forum. That was that they shouldn't be left out. That was, I think that was the point that he made. Was his point. पॉइंट बाय पॉइंट आपकी बात पे नहीं, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ एक लाइन में, मैं 80 से नॉन पार्टी ग्रुप्स में काम कर रहा हूँ और जागोरी वगैरह से भी उनके जन्म काल से ही मेरा परिचय है, और मैं सिद्धांततः आपकी बात को मानता हूँ कि महिला सवाल और महिलाओं के सवाल और जेंडर के सवाल दोनों में जो फर्क है उसको मैं थोड़ा बहुत सुना है आप जैसे लोगों से, उनके बारे में मेरे को अभी तक भी ये लगता है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद जब तक खुद महिलाएं फोर फ्रंट में लीडरशिप कलेक्टिव में पर्याप्त संख्या में नहीं हो, जैसे राखी हैं, राखी और मैं पीपल्स आर्क रिलेटेड चीजें साउथ एशिया की बहुत से इकट्ठे करते हैं, संजीव हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, माइनॉरिटीज की बात भी है, आदिवासियों की बात सबसे ज्यादा है। हम सब लोग आदिवासी आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी क्या होता है इसके बारे में हमको कोई समझ नहीं है, और महिला ग्रुप्स होनी चाहिए, उनके बगैर कमला भसीन जब तक हमको नहीं, अब भी 40 साल के बाद भी जब तक नहीं डांटती हैं तब तक हम वो गलतियां करते हैं, सेक्सिस्ट भाषा बोलते हैं। तो इसलिए मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि वो महिलाओं सबका मुद्दा होने के बावजूद वी नीड योर हेल्प, एक्टिव सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, आपकी भागीदारी बगैर वो अर्धनारीश्वर के आसपास हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरी आप सभी से मतलब आपकी जो हमारे प्रति अच्छे विचार हैं कि हमको खुद से इतना संपूर्ण पुरुष होना चाहिए जिसमें महिला भी शामिल हो और महिलाओं में इतनी संपूर्णता हो कि पुरुष का भी दर्द शामिल हो, ये अभी नहीं है ऐसा। इसलिए आपकी जरूरत है एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के नाते। From Delhi University, I teach economics in Miranda House, Delhi University. थोड़ा सुन ले बात साथी। माइक नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, यहाँ वाला पूरा नहीं चल क्या रहा। यार माइक को क्या करते आप? चलिए तब तक मानवी का जोर से बोलिए। I think we have a lot of potential. वहाँ वाला काम कर रहा है।
that side of the table, not this side. वाले चल रहे थे भाई. I teach economics in Miranda House, Delhi University, and I think we have a lot of potential in terms of volunteers, donation and other things from Delhi University, and this is a time where I think I can help in coordinating that. I've been teaching in Miranda House for 16 years now. Also one thing I have found out from my Facebook friends, also friends who are from Nepal, they've been saying that there is a lot of duplication of effort in terms of material. So what we should focus on is money. We should collect more, emphasize on money, and also secondly that there is resource scarcity in Nepal at this time. So just sending volunteers over there would mean pressure on resources. So one has to be really careful. So we need to focus on coordination between NGOs or other organizations working within Nepal and those who are providing support from outside in terms of actual material support that is needed. And we should have a need-based approach rather than what we think they need. We should always have that coordination in terms of working out what we need and the materials. As far as volunteers and even research is concerned on a long-term thing, as ma'am pointed out very correctly, that there should be various approaches, both short-term approaches and medium-term as well as longer-term. I think the students of Delhi University are an enormous source of potential research, social research, economics research, since I teach economics, and as well as environmental issues. Yeah, just to add, like when we are talking about like. आपका काम कर रहा है? राकेश, जो लोग पीछे बैठे हैं अगर आगे आ जाएं. आप बोल रहे हैं आपका माइक काम कर रहा है. जो लोग कर रहा है उसको भी आप गड़बड़ कर रहा है. जो लोग पीछे बैठे हैं प्लीज आगे आ जाएं. आप सब आगे आ जाइए. सिर्फ वो माइक काम करना ये नहीं करना. हाँ आ गया. हाँ काम कर रहे हैं, चलिए. Okay, my name is Abhiram Roy and I'm working with PUSER and also SAFA coordinator, so South Asian Feminist Alliance for Women's Economic, Social and Cultural Rights. So just to add what they were telling on like regarding the genders, we were trying to explore with our partners and networks from Nepal regarding how we can distribute the funds and hence in a gender sensitive way. So basically we were trying to reach the experts to get their ideas. People from Nepal, they could suggest us more and to know the ground reality. So we were trying to reach like what are the gaps and the challenges with the recent actions being done in Nepal, and also like trying to reach like what challenges are there with the women and the child, like whether they are being able to receive reliefs of the funds and the services are being provided in a gender sensitive way. So like due to the crisis there, we couldn't reach to the peoples. But this morning I was talking to Dr. Renraj Bandari. She's one of the leading women human rights defenders. So she was suggesting like she's also a chairperson of Women Human Rights Defenders. This is a network throughout the 75 district of Nepal, and she was suggesting like these Women Human Rights Defenders could be one of the tool like we can mobilize them, and also like we can reach to the hardest hit districts. And she was suggesting like if we should establish a women support center where these women human rights defenders can work in a proper way, and these women human rights women support centers can provide services like psychosocial counseling services to women, provide sanitary napkins for the women and girls, and can provide like infant foods. So there was the suggestion that was coming from a few of the experts from Nepal. So this is what ground reality we got when we are communicating with the various networks and partners in Nepal. मेरा नाम दास गुनिंदर सिंह है और मैं वकालत करता हूँ और इंसानियत धर्म के नाम के एक संगठन का संस्थापक हूँ। इसी मुद्दे पर कल भी हमारी मीटिंग थी नेपाल की इस त्रासदी पर, और नेपाल के काफ़ी लोगों से हम लगातार संपर्क में हैं अलग अलग क्षेत्रों के,
और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। ये ना हो कि एक ही तरह की, जैसे कई लोगों ने कहा है कि एक ही तरह का सामान एक ही जगह पे पहुंच जाए, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो बिल्कुल ही यहाँ पर कुछ भी ना पहुँचे। तो अभी तक जो जानकारी जिन लोगों से हमें मिली है वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें टेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें सिर बरसात भी हो रही है, सिर ढकने को हमारे पास कुछ नहीं है तुरंत वाले में। हो सकता है बस जानकारी बार बार बदलती रहे, कल की हो परसों की अलग अलग हो जाए। और दूसरा, खाने के लिए कम से कम चावल और चिड़वा ऐसी चीज़ें हमारे को प्रोवाइड अभी हों तो कम से कम चावल तो उबाल के बच्चा भी खा लेगा। और बच्चों के दूध का पाउडर जो है, पानी की कोई कमी नहीं है वो कहते हैं हमारे पास मेन जो छोटी छोटी जो मेडिसिन भी हमारे को कहने मिलनी शुरू हो गई कई इलाकों में, मगर मेन चावल, चिड़वा और टेंट कहते हैं उन्होंने भिजवाए 5,000 के करीब और 23,000 के करीब, तो उसी इलाके में जहाँ से हमारी बात हुई वो कहते हैं हमें ज़रूरत है। तो मेन ये है कि कुछ जैसे जैसे हमारे पास साधन इकट्ठे होते जाएं, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, दर्द बड़ा है, तो वैसे वैसे हम तुरंत साथ साथ में भेजते रहें, तो ये भी मैं मानता हूँ कि एक इंसानियत की बहुत बड़ी सेवा होगी। धन्यवाद जी। I think one we've now talked a lot about what needs to be done now, and everybody's come back with and everybody's come back with what expertise they can offer in terms of how we can. And I've been taking some exhaustive notes also about exactly what needs to be done. There's a lot of input from not just the government and the Nepalese embassy, but also from people who've been in touch with people in Nepal as well. We have all of that sort of mapped out. Things like, I think now we need to start focusing on the how of things, and especially things beginning with how we're going to coordinate these efforts, where is the distribution center going to be at, who is going to be staffing all of that. These logical issues probably can be discussed now going forward, and I'd like to begin that conversation by volunteering about 70% of my time for the next 3 months to this. 70% of working time. 72, so I was wondering 2%. 2% is half days on weekends. यहाँ तो मैं खास तौर से यूसुफ मरेली सेंटर की तरफ से रिप्रेजेंट करने आई हूँ, और यूसुफ मरेली सेंटर की तरफ से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागपट्टनम नहीं हो रहा, हाँ, यहाँ मैं खास तौर से यूसुफ मरेली सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और हम लोग उत्तराखंड, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, नागपट्टनम, कच्छ, यहाँ पर पहले से ही रिलीफ कैंप में काम कर रहे हैं, और अलग अलग सवालों पर अलग अलग काम कर रहे हैं। वही कल कोई बहुत डिटेल होगा बताना उसमें, और वहाँ पर हमारे रिलीफ कैंप चल भी रहे हैं, खासतौर से JNK में भी चल रहा है और उत्तराखंड में चल रहा है। उत्तराखंड के साथ ही अच्छी तरह से मुझे जानते हैं यहाँ पर, उत्तराखंड में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें रिलीफ कैंप के साथ साथ अब हम लोग वहाँ पर रोजगार पैदा करने के लिए वहाँ लोकल रिसोर्सेज को किस तरह से रोजगार पैदा करना है, क्योंकि रिलीफ कैंप के बाद सच में ज़रूरत होती है कि लोग जिन लोगों के पास काम नहीं है उनके लिए काम कैसे पैदा किया जाए, और उस काम को हम लोकल रिसोर्सेज में लोकली जो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, वhatever जो भी है, बहुत सी ऐसे सामान जो अवेलेबल होता है जिसको हम कैसे उसको रोजगार पैदा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब हम लोग कर रहे हैं। वो एक बहुत सी उसमें जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, बहुत सी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। उसमें दरी बनाना है, हैंडमेड पेपर बनाना है, जो कि वहाँ पर पानी और पत्ते वत्ते बहुत कुछ होते हैं, इस तरह का बहुत कुछ होता है। ये सब हमारा काम पहले से ही चल रहा है, और रिलीफ कैंप के बाद भी दूसरा काम हमारा होता है कि जो सामान वहाँ पर उपलब्ध हो उससे रोजगार कैसे लोगों में पैदा किया जाए, और सस्टेनेबिलिटी के लिए कैसे उनमें एक आत्मविश्वास पैदा किया जाए कि हम अपने मुद्दे पर अपना जीवन कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसमें हम और संस्थाओं की मदद लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय सेवा दल है, महिला रक्षा समिति है, जो कि महिलाओं में पहले से ही हम लोग काम कर रहे हैं, और 1977 से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये मैं इसमें इस रेफरेंस में ये बात कहूँगी। यहाँ पर नेपाल में भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम मदद ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है मजदूर सभा, वहाँ पर औरतें जो औरतें फॉरेस्ट में खास तौर से काम करती हैं उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, और वहाँ इंटीरियर में हमारे बहुत से कैंप्स और इस तरह के कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। उसी के साथ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन के भी प्रोग्राम चलते रहते हैं।
यहाँ जो आप से मेरा एक ही निवेदन है कि वहाँ काफ़ी इंटीरियर में नेपाल में हम इतनी जान पहचान है कि हम एक दूसरे की जो एक्टिविटीज़ है उसमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जैसे अभी बहुत से साथियों ने कहा कि जो ओवरलैपिंग है उसको हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए, उस पर हमको ज़रूर विचार करना चाहिए। मुझे सिर्फ यहाँ पर एक रजिस्टर करवाना था नाम अपने यूसुफ अली सेंटर का, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पहले से काम कर रहे हैं और अभी हमारे 2 बसें जा रही हैं, जो जा रही हैं जो रक्सौल से जाएंगी और एक सासाराम की जनकपुर की तरफ से जाएंगी। उसमें सब जो हमारे साथ जो जितने साथी जाएंगे वो सब जवान लड़के हैं जो कि स्कूल और कॉलेजेस के लोकल वहीं पर पढ़ने वाले हैं और वो वहाँ पर मदद करने के लिए जा रहे हैं। उसमें लोकल जो है वहाँ अथॉरिटीज़ उनकी मदद ली है और पास में खासतौर से जो उस इलाके से जुड़े हुए जो लोग मदद करना चाहते हैं, जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जो लोग जो उसमें ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेशन में पहले से काम कर रहे हैं, वो भी हमें उसमें मदद करने वाले हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं आपको उस समय पर बता दूंगी। वहाँ विभिन्न संस्थाओं से भी हमारी बात चल रही है, अभी बहुत से लोगों से बातचीत उसमें चल रही है। उसमें जो भी हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही क्या। Benny, if you can speak next. No, I just want to try and sum up in terms of some responses that have come into 3-4 broad areas which we can then maybe create working groups on. The first is raising resources. So who's raising resources, who's already doing that, so we need a hold of that. And also people trying to get permissions, for instance, so Nepali groups can get money directly if they require. The second is relief. So we understand what relief is required. So it could be food, water, blankets, etc., tents. The third is health. Who's intervening in terms of health? Who are the personnel going there? So MSF is sending people. Likewise, other groups. You have the group that works on telemedicine. So we need to get a hold of that. Then linked to that is trauma. I mean, people who can go for counseling a little later, etc. And then also a sense of personnel. You have a lot of students volunteering. Again, people have mentioned that we need to know who is required so we don't end up being a burden, that we end up spending more time dealing with the volunteers. So it should again be based on needs. People should have skills in going into emergency situations, etc. Then we also need the communications mechanism in place. So we have a clearinghouse. It could be a mailing list, it could be a Facebook page where people can log on to understand who's doing what, whom can you give money to if required. And the third is the point that was made about long-term initiatives. So looking at rebuilding livelihoods, looking at housing rights. So I think broadly these are the 7 areas in which we need to have all the information together. So maybe some of us can send out an email based on these 3-4 areas, and then people, and you already have some information. For instance, there are students from Jamia who are collecting money but don't know how to send it, don't know what to buy. So I think these are sort of the broad areas on which we should now start working on. Sanjeev and then I'll just मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लगातार आती जा रही हैं और बहुत सारी आएंगी भी, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है और इश्यूज ऐसा है, सबकी इन्वॉल्वमेंट, सबकी इमोशंस और फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई है। पर मुझे लगता है कि अभी आज हम जिस पर्पस के लिए बैठे हैं उसमें कम से कम जैसे एक सुझाव आ रहा था कि वर्किंग कमेटी या वॉलंटियर कमेटी एक वैसा एक कुछ 5-6-7 लोगों का जो कि आगे भी करता रहे और जो सारे चीजें सुझाव आई हैं उसको आगे तक लेके जाए। तो मुझे लगता है कि वो लोग वॉलंटियर करें या कुछ नाम सजेस्ट करें ताकि वो उसमें जो जितनी भी चीजें आई हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके आगे तक के लिए भी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, लंबा प्रोसेस है, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करके चलना होगा। मुझे लगता है संजीव ने जो कहा है उसके साथ साथ वर्किंग कमेटी के साथ कोई पता, एड्रेस जहां हम जैसे लोग संपर्क कर सकें, फोन नंबर, ईमेल तो शायद है, ऑब्वियसली फेसबुक पेज बनाने की बात हुई है, बट कोई एड्रेस किसी जगह का है, अगर किसी ने हमको अप्रोच किया कि रिलीफ मटेरियल है कहाँ भेजें, तो कलेक्टिंग सेंटर का भी कुछ फैसला जल्दी से हो तो सामान जुटना शुरू हो।
मैं बीच में बस इंटरवीन करके ये कि 2 ऑफर्स हैं जगह के, अभी वी जस्ट नीड टू इन्वेस्टिगेट एंड गेट बैक टू यू, हफ्ते भर में विल गेट बैक टू यू जो 2 ऑफर्स हैं उनको लेकर। हो सकता है 3-4 अलग अलग, क्योंकि दिल्ली भी बड़ा, NCR भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसको यहाँ से वहाँ सामान भी लेके जाना, so इट मे बी मोर डिसेंट्रलाइज्ड। 1 हफ्ते के अंदर वी शुड बी एबल टू गेट बैक टू यू ऑन दैट। वॉलंटियर्स को जो मीटिंग है उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि एक हम लोगों की ओर से क्लियरिंग हाउस और जो वॉलंटियर जैसे लाजपत भवन वालों ने कहा है वो बात करके बताएंगे, तो विल गेट बैक टू। मुझे लगता है कि अपने क्लियरिंग हाउस के साथ साथ अगर बाकी जो लोग इंडिपेंडेंटली इस ग्रुप के बाहर भी एफर्ट कर रहे हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आ जाए तो उसके साथ क्लब करके तो बहुत जितने लोग काम जो जुड़ते जाएंगे उनको इंफॉर्मेशन आता जाएगा। जो लोग इंडिपेंडेंटली भी कर रहे हैं उनका भी सूचना अपने बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बताया देहरादून में भी इनफैक्ट अगले हफ्ते से ही रिलीफ मटेरियल कलेक्ट करना शुरू हो रहा है, तो दैट immediately can be one place that we can link to. The more dispersed and decentralized collection. Even in Lucknow and Bahraich also, वो सेंटर का भी उसमें एक साइड टॉक पूछ सकता हूँ मैं? बिल्कुल। आप दिल्ली में कुछ समय दे सकते हैं? तो आपने कहा कि बाहर वालों से कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, तो यूपी बिहार में ग्रुप्स ने वॉलंटियर किया है, आने से पहले कई फोन, अभी मीटिंग के दौरान कई फोन आए अपनी सॉलिडेरिटी के लिए यूपी से, बिहार से और मध्य प्रदेश से। तो पहले 10 दिन चाहिए हमें, उसके बाद तो क्योंकि आपका पुराना अनुभव है रिलीफ का, इसलिए ठीक है, दे सकते हैं 1 तारीख के बाद, 1 से 10 तक। बढ़िया। और कोई वॉलंटियर ये जरा समय अभी कहा, मालविका ने कहा कि वो वॉलंटियर कर रही हैं, विभोर ने कहा, खुदाई खिदमतकार से रिजवान ने कहा, फिर हम जामिया के साथियों से भी they'll be helping, I think DSG की तरफ से एक वॉलंटियर। तो ये कुछ वॉलंटियर की टीम अपने आप को कोऑर्डिनेट करके जो है वो हमें फीडबैक देते रहेंगे। They'll feed into the group. Arun and Benny have agreed to give situation updates as they get it from the ground, from MSF or from Action Aid Nepal or from even Farooq had contacted कि Oxfam के साथ वो बात करके जो है, so people who are not here but have already committed sort of given assurance that they will feed information to us, will ensure that you know वो जो सब ग्रुप्स हैं वो जो है एक दूसरे के साथ संपर्क करके जो है वो सब करना शुरू करें। और मैं यूसुफ महरी सेंटर की तरफ से जी एंड कम्युनिकेशंस की जी बेनी जी एक व्यक्ति अगर दे सके फुल टाइम अगले 3 महीने के लिए पॉसिबल? Actually, I was going to suggest minimum 2 to 3 people full time paid workers. Yes. पूरा इनको मत डालिए और कोई और देखिए, अगर 70% विभोर दे रहे हैं, राधिका सहगल जो यहाँ से गई हैं वो कह रही हैं वो अभी सबैटिकल पर हैं, वो भी फुल टाइम नहीं दे सकती हैं। स्पेशलिस्ट नीड है उनको वहाँ भेजना है काउंसलिंग के लिए, भेज भी सकते हैं, जब तक नहीं भेज रहे हैं नहीं उनका इस काम में थोड़ी दरी बिछवाने लगोगे आप, वो नहीं, बट शी इज विलिंग टू You had people here, I mean, they already, there are lots of volunteers. Now volunteers will organize themselves. राकेश जी वो जो बात कह रही है प्रिंसिपल